Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to be talking about 12 things that my school taught me in 12 years. So basically it was a random idea that came to my mind. See, I have listed all the things that I'm going to talk about in this video, and a lot of things in this video which I'm going to talk about are some things that I learned really late in my life, and they are kind of, basic things that I learned really late in life. So yeah, let's talk about things. So yeah, let's go. So the first on the list we have is stop blaming and start accepting. This is something I learned recently, and it has seriously changed a lot of things in my life. If I say, I am more peaceful now, I am more calm now. Yeah, I am. Okay, fine, let's talk about it. What you are getting out of blaming, what you are making out of it. Is there any outcome? Nothing's gonna change if you blame, if you keep blaming your faith, if you keep being the victim. Blaming won't get you anywhere in life. So it's okay if something unfortunate happens to you. Fine, it's fine. Don't blame yourself, don't blame your faith, don't blame your destiny, don't blame God. Don't do this. What you are getting out of it? Nothing. So it's better to accept things the way they are and just think about what you can do next. It's okay, fine. If something happened, fine, it's okay. I can't do anything about it. So what I can do now? What can be my next action so that something good can happen? I am just making this video out of nowhere. I have zero script prepared. I just wrote down all the things, and yeah. So just think about the things that you can control. Okay. If there's something that you cannot control, then you need not to even think about it. Why you are even thinking about it? It's okay. It's not even in your control. It's okay. Fine. It happened. Fine. Let it go. Let it be. Let things be. For the sake of your peace, that's all you can do. The bestest thing you can do sometimes. It's okay. Fine. It's better. It's way better to accept things the way they are. You don't need to change everything. You don't have to take the control every single time. It's fine. It's fine. Okay, it's okay. Happens to everyone. It's fine. You don't have to control everything. There are some things that you can control, and there are some things that you cannot control at any cost. So please, for your sake, for your peace, let things be. So, if something depressing, something traumatizing, something brain shaking, earth shaking happens to you, just in case, if something happens, it's not the end of the world, okay? It's okay. It's fine. It's okay. It's not the end of the world. Life goes on. People move on, so life goes on. You don't have to be that person. Oh my god, this happened to me. What I will do? Oh my god. It's not getting you anywhere, man. It's not getting you anywhere. It's not getting you anywhere, to be brutally honest, okay? So please don't be that person that always lives in the thought that यार मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यार मैं क्या करूँ, यार मेरे साथ तो ऐसा हो. It gets you nowhere, okay? नहीं बदलती चीज़ें. अगर तुम जाके ऐसा कह रहे हो 4 लोगों को कि भाई ऐसा हो गया, कुछ ठीक नहीं होने वाला है उससे, okay? The bestest thing you can do is accept and just let things be. क्योंकि क्या ही कर सकते, क्या ही किया जा सकता. Sometimes this is all you need, कि क्या ही कर सकते. If you can do something about it, then do it. If you cannot do anything about it, then let things be. क्या कर सकते भाई, क्या ही कर सकते. Let things be. यार मतलब ऐसे रहने से it gets you nowhere, okay? कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारे मार्क्स कम भी आ रहे हैं, ठीक है भाई, अगर तुम एक बार फेल भी हो गया, अरे ठीक है भाई, ठीक है, चलता है, क्या चाहिए यार, ठीक है भाई, ठीक है. इट्स ओके, फाइन. क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना यार, दुनिया थोड़ी ख़त्म हुई है. अगर तुम सपोज टीचर ने तुम्हें डांट दिया, तुम घर आके डिप्रेशन में जा रहे हो, अरे यार क्या पॉइंट है इसका, क्या पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है. दैट्स ऑल यू कैन डू समटाइम्स, कि हाँ भाई ठीक है, पानी पियो, सो जाओ, और तो क्या ही कर सकते. Academics are just a part of your life, not your whole life. It's okay if you got a bad grade. It's okay if you worked hard for it. It's okay if things didn't work out the way you wanted them to be. It's fine. It's okay.
एकेडमिक्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. लाइफ इज़ वे बियॉन्ड दैट. तुमको क्या लगता है भाई, भगवान ने हमको क्यों भेजा है धरती पे? फॉर्मूले रटने के लिए कि इक्वेशन रटने के लिए? कुछ तो भाई सोचो. देयर मस्ट बी समथिंग एल्स वेटिंग फॉर यू. तो इट्स ओके ना, ठीक है. इफ़ यू आर नॉट गुड एट एकेडमिक्स, फाइन. You can be, you can be a great artist, you can be anything you want. It's okay if you are not good at academics, and it's okay if you are good at academics. It doesn't matter either way, okay? So it's fine. Grades never define you. They do not. So ये खुद पे प्रेशर डालना कि भाई मैं तो 20 घंटे पढ़ूंगा भाई, 4 घंटे सोऊंगा, मेरे लिए 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है, मैं तो 20 घंटे पढ़ूंगा. तुम पढ़ लोगे, तुम अच्छे मार्क्स भी ले आओगे, बट क्या पॉइंट है उसका? कोई पॉइंट नहीं है उसका, ठीक है. कोई पॉइंट नहीं है. मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोई पॉइंट नहीं है. ये खुद पे जो इतना प्रेशर डालना है, ये ग्राइंड करनी है, ये सब कोई पॉइंट नहीं है भाई. इन्जॉय योर लाइफ व्हाइल यू कैन, ओके. मेक फ्रेंड्स, गो आउट, करो, ज़िंदगी के मज़े करो. डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू, इट्स फाइन. पर ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई को निगलेक्ट कर दोगे. भाई यू हैव टू गेट अ डिग्री, पढ़ लो थोड़ा सा, बट दैट डजंट मीन कि तुम खुद को ऐसे प्रेशराइज करोगे. ये टॉक्सिक माइंडसेट नहीं लाने का खुद पे कि नहीं भाई पढ़ना है. नहीं भाई, कहाँ जाओगे तुम इतना पढ़ के? एकेडमिक्स डू नॉट रियली मैटर इन द लॉन्ग रन, ठीक है भाई. 4 जगह बोलने में अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे 99% आए थे, मेरे इतने परसेंट आए थे, इट्स फाइन. 4 जगह बोलने में, फ्लेक्स करने में मज़ा आएगा, बट इन द लॉन्ग रन, प्रैक्टिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इट, एक्सपीरियंस एंड ये जो तुम्हारी प्रैक्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, ये ज़्यादा मैटर करती है. सो एकेडमिक्स आर समथिंग कि हाँ भाई चल रहा है, चलने दो. उनको लेके खुद को इतना ज़्यादा खुद का अलग ही परसेप्शन बनाना, कोई पॉइंट नहीं उस बात का. योर पेरेंट्स आर नॉट योर एनिमीज़. Just because they denied you for a night out or a night stand or a hangout, or just because they don't agree with you on some topic, that doesn't mean they are your enemies. That doesn't mean they do not want the good for you. It doesn't mean that, okay? Parents always want the good for their child, always better for their child. They can sacrifice everything for their child, okay? They can, okay? So don't go थिंकिंग कि भाई मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती. देखो इट्स ओके, थोड़े डिस्क्रीमेंट्स होते हैं, थोड़ा है जनरेशनल गैप, इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, या दैट डजंट मीन कि वो तुम्हारा भला नहीं चाहते. वो जो भी कह रहे हैं ना, सुनो, समझो, एक बार के लिए उनकी भी समझो. वो ट्राई करते हैं तुम्हें समझने की, तुम भी करो एक बार, समझो एक बार कि यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, कि भाई समझते नहीं है या ऐसा है, सपोर्ट नहीं करते. ऐसा नहीं होता है. पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट देयर चाइल्ड, इवन इन द वर्स्ट केसेस. तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, दैट्स द केस. तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रखा है. सो ये जाके ये प्लीज़, तुमको पता नहीं है टॉक्सिक फैमिली क्या होती है, ठीक है. तुमने एक्चुअल में टॉक्सिक फैमिली देखी नहीं है जो तुम जाके ब्लेम कर रहे हो. तो किसी दिन देख लोगे ना टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक पेरेंट्स किसे कहते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा. हर बात के लिए, छोटी बातों के लिए तुम जाके ये जो लड़ रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है. तुम बहुत गंदा रिग्रेट करोगे. ये रेबल करना घर के सामने, ये माइंडसेट है ना. मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी इस टॉपिक पे, ठीक है. इट्स ओके, बट योर पेरेंट्स आर नॉट योर एनिमीज़, ठीक है. कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑल द टाइम दे आर राइट. वो उनके तरीके से सही ही है. एक बार मतलब वो सही ही है उनकी जगह, और तुम भी सही ही हो तुम्हारी जगह, बट वो ज़्यादा सही है उनकी जगह, ठीक है. उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी, ठीक है. डाउटिंग टेक्स यू नोवेयर, ओके. ये जो तुम खुद पे डाउट कर रहे हो कि यार 4 लोग क्या सोचेंगे, कि क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या मैं कर सकती हूँ, एम आई इनफ, या विल आई एवर बी इनफ, या एम आई डिजर्विंग ऑफ दिस. कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा. तुम सोचते रह जाओगे, अपॉर्चुनिटी हाथ से चल जाएगी. भाई क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम सोच रहे हो, बस तुम सोच रहे हो. वो भी काम की चीज़ नहीं सोच रहे हो, कचरा सोच रहे हो कि भाई क्या होगा, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा. ज़माने भर की ओवर थिंकिंग करनी है. कुछ काम धंधा तुम कर. देखो गाइस, सीधी सी बात है, डाउट क्यों करना है?
डाउट क्यों करना है तुमको करना है कि नहीं? सीधी सी बात है, क्या तुम वो चीज़ करना चाहते हो कि नहीं? करना चाहते हो तो डाउट क्यों कर रहे हो भाई? दिल से करो, डाउट क्यों करना है? दिल से करो ना, हर काम हो जाता है, अच्छे से होता है। यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ फॉर एवरी सिंगल थिंग। यार होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो, सीखो, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या, गिव इट अ ट्राई। 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग बोलेंगे, 4 बातें बोलेंगे, वो भूल जाएंगे। इट्स ओके। इतना भी ज़्यादा फियर में मत जियो, इतना भी ज़्यादा जजमेंट में मत जियो कि यार तुम खुद ही खुद को जज करते हो, तुम खुद ही खुद के दुश्मन बनने पड़े हो। भाई इतना कोई नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, लोग हंसेंगे, 4 बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, ठीक है भाई, आई एम द गॉसिप, आई एम द टी, बी लाइक इट, ओके। आई हैव अ फैन बेस, 4 लोग बोलेंगे, ठीक है फाइन, बट करो वो जो तुम करना चाहते हो। क्यों सोचना है इतना? ठीक है, इफ दे विल जज यू, फाइन 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 फाइन, करो जो तुम्हें करना है, सिंपल एज दैट। अपॉर्चुनिटी चली जाती है हाथ से, तुम बस सोचते रह जाओगे कि यार मैं कैसी लगूंगी ये करते हुए। ऐसा इतना भी क्यों डरना है भाई? किससे डर रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो भाई? तुम्हारा ड्रीम है, जाओ चेस करो उसे, क्यों डर रहे हो इतना? ठीक है ना, ठीक है फाइन। बोलेंगे लोग, फाइन, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। तुम वो करो जो तुम कर सकते हो, जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि खुद को डाउट कर रहे हो, ज़माने भर का डाउट तुम खुद ही कर रहे हो। 4 लोग क्या बोलेंगे भाई? 4 लोगों के बाद भाई 4 लोग क्या बोलेंगे? तुम 4 लोगों के बोलने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो, तुम खुद ही खुद को सब बोल लेते हो। कोई पॉइंट है इस बात का? इट्स, यू डू नॉट नीड द वर्ल्ड टू लाइक यू। यस, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ, जो तुम पीपल प्लीजिंग करते हो कि यार बुरा मान जाएंगे, यार उन्हें बुरा लगेगा, देखो तुम्हें करना है कि नहीं? तुम्हारा मन नहीं है, तुम उन्हें फोर्सफुली हाँ कह रहे हो। पीपल प्लीजिंग भाई क्या हो रहा है? ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है ना कि ऐसा करने से, देखो भाई कुछ नहीं होना है। पहली बात तो ये, दे विल थिंक कि हाँ भाई तुम तो फालतू इंसान हो, तुम तो फालतू इंसान है, तुम्हें तो जो बोलो वो तुम कर दोगे। इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, जहाँ पे ना बोलना चाहिए वहाँ पे ना बोलो, जहाँ पे हाँ बोलना चाहिए वहाँ पे हाँ बोलो। ठीक है, इट्स सिंपल एज डैट। कोई पॉइंट नहीं है ये 4 लोगों के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बना के, मतलब क्या भाई? ठीक है, तुम खुद की क्यों नहीं सुनते हो? तुम खुद की इच्छाएं निगलेक्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर। एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ मैं सब, बट इट्स ओके। देखो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ना बोलो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मत बोलो। इट्स ओके, इट्स ओके टू से नो। तुम नहीं हो विलन, तुम बुरे इंसान नहीं हो, ठीक है? इट्स ओके इफ़ यू डिनाई फॉर समथिंग, ठीक है ना भाई? नहीं करना मेरे को, मैं क्यों करूँगी? नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, मेरे को नहीं करना, मेरे पे दूसरा अपॉइंटमेंट है, मेरे पे ये है वो है, नहीं करना तो नहीं करना, सिंपल एज दैट। हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा तुमको एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है चीज़ों की कि मैंने इसलिए मना किया जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं करना। डोंट गेट योर सेल्फ यूज्ड, ये पागलपंती यार। डोंट गेट योर सेल्फ यूज्ड, दैट्स द होल पॉइंट। यू डोंट नीड द वर्ल्ड टू लाइक यू। ठीक है, 4 लोग, ठीक है भाई, ठीक है, फाइन फाइन फाइन, इट्स ओके। रिलैक्स भाई, रिलैक्स। यू आर जस्ट 15, यू आर जस्ट 14, यू आर जस्ट जितने भाई। देखो, लाइफ इज़ टू बिग। ठीक है, ठीक है, अगर तुमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के साथ बहुत भयानक चीज़ें होती है, लेकिन स्टिल दे स्माइल एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा दुख कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। देखो, मैं निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट बात ऐसी है ना कि अगर तुम बाहर निकलो अपने घर के या अपने दिमाग के, तुम देखोगे कि भाई दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया में बहुत तरह की दुखी लोग हैं, पर सब दिन के आखिर में मुस्कुराते हैं। वही तो बात है कि ठीक है भाई, यू आर जस्ट 15, यू विल फिगर इट आउट। क्यों रोना है इतना 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 भाई? अपने कमरे में बैठे बैठे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान कर लेते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा। देखो, प्लान करना बुरी बात नहीं है, बट प्लान करने में भी, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, पता है? बट इट्स ओके। तुम सब 15 साल के हो यार, तुमने अभी आधी दुनिया देखी नहीं है, तुम घर में बैठे बैठे जज कर रहे हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी यार, मेरा तो मैं भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या करेंगे? इट्स ओके, चलता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर तुमसे एक चीज़ नहीं भी हुई तो व्हाट इफ तुम किसी बेटर चीज़ के लिए बने हो, वो तो सोचो, वो तुम सोचोगे नहीं, तुम ये सोचोगे कि क्या हो गया मेरे साथ भाई। पहले तो ये डिस्प्रेशन वाले एपिसोड आएंगे भाई, डिस्प्रेशन, इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है, इट्स ओके ना,
होता है, इंडिया है, चल लाइफ है, चलता है। देखो, लाइफ में कभी फिट इन करने का ट्राई नहीं करना, नेवर ट्राई टू फिट इन, ठीक है। तुम आज थोड़े कूल बन के, ठीक है, लोगों के साथ फिट इन कर भी लोगे, पर क्या तुम खुश रहोगे? क्या तुम खुश रहोगे? नहीं, नहीं भाई, नहीं। प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स ओके। अगर तुम जंगली हो तो बिहेव जंगली, अगर तुम शांत हो तो बिहेव शांत, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर मोल्ड में खुद को मोल्ड करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट वाइब विद देम, फाइन, यू डोंट हैव टू सिट विद देम। क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? तुम नहीं हो खुश उससे, तो क्यों खुद के लिए ऐसा करना है भाई? प्रिटेंड करने में इतनी एनर्जी जाती है ना, ये लोगों के सामने प्रिटेंड करना कि यार, बहुत एनर्जी जाती है इस चीज़ में। तो जस्ट बी हु यू आर, ठीक है। इट्स ओके। खुद को क्यों बदल रहे हो? अब ऐसा नहीं है खुद को बदलना नहीं चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, बट खुद को ऐसे बदलना चाहिए कि बेटर योरसेल्फ, ओके। कि मेरी ये चीज़ ख़राब है तो मैं इस पर काम करूँगी, मैं इसे सुधारूँगी। दिस इज़ हाउ यू शुड चेंज योरसेल्फ। बट इफ़ देयर इज़ समथिंग अबाउट यू, यार मतलब इट्स समथिंग प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई तुम्हें क्या चेंज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ जस्ट टू फिट इन, जस्ट टू गेट वैलिडेशन, इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। वैलिडेशन टेक्स यू नो वेयर। आउटसाइड योर बुक्स देयर इज़ लाइफ। यस, तुम्हारी किताबों के बाहर निकलो, तुम 1000 डिग्री ले लोगे ज़माने भर की, MHD PhD, ठीक है भाई, अच्छी बात है, ले लो। बट बात ऐसी है कि अगर तुमने इफ़ यू डू नॉट हैव द ब्रेन ना, देन इट्स यूजलेस, ओके फाइन। बात ऐसी है कि थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनो, थोड़ा बाहर निकलो दुनिया में, कि समझो भाई क्या चलता है दुनिया में, कैसे कैसे। इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। इट्स वेरी नेसेसरी टू गो आउट। ये इंट्रोवर्ट का टैग लेके घूमने से कुछ नहीं होता है कि हाँ भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो मेरे रूम में ही रहता हूँ, मेरे को सोशल एंग्जाइटी है, एक्चुअली मेरे को लोगों से बात करने में हिचकिचाहट। इट्स नॉट अ फ्लेक्स, इट्स नॉट अ फ्लेक्स, ओके। जिनको एक्चुअल में एंग्जाइटी होती है ना, उनसे पूछ लेना है एंग्जाइटी क्या होती है, ठीक है। इट्स नॉट अ फ्लेक्स कि ये जो तुम 4 रील्स देख के आ जाते हो कूल बनने की, भाई भाई मेरे को तो सोशल एंग्जाइटी है गाइस। नहीं है भाई, तुम्हें नहीं है, तुम्हें पता नहीं एंग्जाइटी क्या होता है, तुम रील्स भाई। देखो भाई, बात ऐसी है, निकलो घर से बाहर, जानो पहचानो कैसे दुनिया चलती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है। हैव होप एंड बिलीव इन मिरेकल्स। यस, दिस इज समथिंग आई लर्न रियली लेट इफ आई से। एंड इतनी बढ़िया बढ़िया बैक स्टोरी है ना इसके पीछे, इतनी, मतलब आई विल मेक अ स्टोरी टाइम इन फ्यूचर समडे आई गेस। बट हैव होप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ दैट्स नॉट योर वे, तो फिर तुम क्या करोगे? सैड हो जाओगे यार, और फिर तुम्हारा वही माइंडसेट बन जाएगा कि ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो यही होता है, वही होता है, ऐसा होता है यार, मैं तो बहुत, यार मेरी तो किस्मत ही यार। भाई नहीं है तुम्हारी किस्मत ख़राब भाई, भाई तुम सोचते गलत हो यार, क्या पॉइंट है यार? ऐसे 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 तुम नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसे 4 तुमने अपनी धारणाएं बना ली अपने, भाई मेरे बालों को क्या हो गया? तुमने 4 धारणाएं बना दी अपने बारे में कि यार मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ख़राब है। हाँ, तुम ऐसा हो भी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितने तुम सोच रहे हो, और तुम इतने अच्छे भी नहीं हो जितने तुम सोच रहे हो। इट्स जस्ट सीधी सी बात है, घटिया से घटिया चीज़ हो जाए, होप नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तुम बाहर निकलोगे, देखोगे ना, अगर लोगों को घटिया से घटिया चीज़ हो रखी है उनके साथ, फिर भी क्या कह रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस होल्ड ऑन टू डैट। एक दिन सब ठीक हो जाता है, अल्टीमेटली सब ठीक हो जाता है, इट्स ओके। अगर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता है कि भाई यार क्या होगा यार, क्या होगा यार, जीवन है यार, ऐसा चल रहा है यार, ऐसा ऐसा, इट्स ओके, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट। इन द वर्स्ट से वर्स्ट केस थिंग्स वर्क आउट बेटर देन यू कैन एवर इमेजिन, ठीक है। घटिया से घटिया केसेस में देखा है मैंने, पीपल लिव हैप्पीली, ओके, इट्स ओके, थिंग्स वर्क आउट। अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है, लेट देम बी, वो भगवान के हिसाब से हो रही है, ठीक है। अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है, वो भगवान के हिसाब से हो रही है। तो इसलिए चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं करना। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है मर्जी से, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई बहुत डीमोटिवेशन आ रहा है यार, हाँ भाई क्या हो गया भाई, तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। हैव होप कि हाँ भाई इट्स ओके फाइन। ये हैविंग होप इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग एवर। ये मैंने इतना लेट सीखा है ना भाई। एकदम विक्टिम हुड में जीने से कुछ नहीं होता है। बात ऐसी है कि अगर तुम होप रख सकते हो ना घटिया से घटिया सिचुएशन में,
देन यू आर द ब्रेवेस्ट पर्सन एवर। दैट्स द होल केस। हैव होप, ठीक है भाई। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ टू अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तुम बैठे बैठे इतने से हो, तुम 5 फुट के, तुम घर में कमरे में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी कैसे बता रहे हो यार। इट इज़ द बेस्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। समटाइम्स इट इज़ द बेस्टेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है भाई। हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। दिल में होप है भाई, हो जाएगा। इट्स ओके। होप कैन टेक यू आउट ऑफ द डार्केस्ट प्लेसेस एवर। लर्न टू फॉरगिव। यस, समटाइम्स यू आर द विलन बट समटाइम्स यू आर द विक्टिम। सो इसलिए लर्न टू फॉरगिव। क्यों? क्योंकि ग्रज होल्ड करने से क्या होगा? ग्रज होल्ड करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में एक खटास आ जाएगी, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बन जाएगा। कोई पॉइंट नहीं है ग्रज होल्ड करने का कि ठीक है भाई, आज एक काम करना, बैठना आराम से, कॉपी पेन निकालना, एक एक चीज़ लिखना कि किसने मेरे साथ क्या किया है, फिर शांति से बैठना, पानी पीना और फिर सबको माफ़ करना उस चीज़ के लिए, ठीक है। इट्स ओके। हो गया तो हो गया, फ़ाइन। उनसे भी हो जाती है गलती, हमसे भी हो जाती है गलती कभी कभी। देखो, गलती कभी एक साइड से नहीं होती है। अगर कुछ सामने वाले की गलती थी तो तुम्हारी भी कुछ गलती होगी, है, ठीक है। तो इसलिए अपनी गलती के लिए तुम ईश्वर से माफ़ी मांगो, या उस इंसान से अगर माफ़ी मांग सकते हो तो मांग लो, और सामने वाले को उसके फॉल्ट के लिए तुम माफ़ करो। क्योंकि क्या करना है भाई, क्या करेंगे ग्रज होल्ड करके, क्या होगा? कुछ नहीं, ठीक है भाई। कुछ मिलता नहीं है उससे, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। माफ़ करो, मूव ऑन, हो जाती गलती, इंसान है, कुछ मजबूरी रही होगी, इट्स ओके, फाइन। कुछ रीज़न रहा होगा, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। तो कुछ रीज़न रहा होगा, हो गया, ठीक है। उस टाइम पे बात होगी कुछ, ठीक है, फाइन, इट्स ओके। वी आर ह्यूमंस, वी आर इम्परफेक्ट एंड दैट्स ओके। वी आर ह्यूमंस, गलती हमसे ही होती है, गलती सबसे होती है। तो माफ़ करना सीखो, माफ़ होना सीखो, सॉरी बोलना सीखो। सॉरी से कुछ होता नहीं है, बट इट्स समथिंग, तुमको एक सेंस ऑफ वो रहना चाहिए कि हाँ भाई, ये मेरी गलती थी या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये मैंने नहीं निभाई। इट्स समथिंग लाइक दैट। लर्न टू फॉरगिव, दैट्स ऑल। इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, ठीक है। अगर तुम में कुछ इम्परफेक्शंस है या तुम में कुछ कमियां हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट एक बात बोलूँ मैं, इम्परफेक्शंस आर परफेक्ट। हम इंसान हैं एंड वी आर मेंट टू बी इम्परफेक्ट, ठीक है। इट्स ओके, तुम्हारे इम्परफेक्शंस तुम्हें बहुत यूनिक बनाते हैं। इट्स ओके, अगर तुम में हैं कुछ कमियां सोसाइटी के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, इट्स ओके, फाइन, एम्ब्रेस देम ना। उनको लेके डिप्रेशन में जाना, इनसिक्योरिटी पालना, इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही परफेक्ट हो, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें वैसे ही रहना है। देखो, बात ऐसी है कि जिन चीज़ों का तुम कुछ कर नहीं सकते ना, उनको लेके इनसिक्योर होने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। जिन चीज़ों का जैसे तुम कुछ कर सकते हो, जैसे तुम्हारे माइंडसेट पे तुम काम कर सकते हो, जैसे तुम्हारी देखो, प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि जिन चीज़ों का तुम कुछ कर नहीं सकते उनको लेके इनसिक्योर होने का कोई पॉइंट नहीं है। इट्स ओके। सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, सब में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। वो बस ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो ये इनसिक्योर क्यों होना है तुमको कि भाई मैं तो ऐसा हो, भाई मैं तो ऐसा? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। नो वन रियली केयर्स, ठीक है। यू विल फाइंड योर पीपल, यू विल फाइंड योर ट्राइब, जिनके लिए तुम परफेक्ट होगे, ठीक है। इट्स ओके। इतना डिस्प्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों में। इतना इनसिक्योर होना क्यों है कि भाई क्या है, ठीक है ना, ठीक है, फाइन, इट्स ओके, क्या हुआ? भगवान जी ने हम सबको भेजा है धरती पे। वी ऑल आर यूनिक, ओके, वी ऑल आर यूनिक। कोई, ठीक है यार, तुमको भाई लोगों का ऐसा माइंडसेट रहता है कि मेरे को उसके जैसा बनना है, मेरे को इसके जैसा बनना है, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को वैसा बनना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है। देखो भाई, क्यों बनना है तुमको शाहरुख खान, क्यों बनना है तुमको शाहरुख खान? ओके, इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। तुम बनो ना। दुनिया में है 36 शाहरुख खान है, दुनिया में हमारी कमी है, सो तुम बनो। तुम्हें किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो, ठीक है। तुम बनो। तुमको क्यों भाई, क्यों? ठीक है, लोगों से इंस्पिरेशन लो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। पर लोगों को पूरा मतलब, देखो भाई, लोगों से इंस्पिरेशन लो, लोगों को भगवान मत बनाओ कि भाई ये है सत्य है। नहीं,
सब इम्परफेक्ट है, सबसे गलतियाँ होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, तो तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मुझे ये वीडियो इतने टाइम से बनानी थी ना, इतने ज़्यादा टाइम से बनाई थी ना, लाइक मैं 2-3 मंथ से सोच रही थी कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, मुझे ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ मैंने बना दिया एंड आई एम प्राउड ऑफ मी। ओके फाइन गाइस, बाय द वे मैंने मेरे चश्मे का फ्रेम बदला लिया है। मेरे चश्मे का फ्रेम पहले पिंक हुआ करता था बट अब वो ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पुराना वाला चश्मा है ना, ऐसा यहाँ से ये टूट गया था तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देखो, कंसिस्टेंसी तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, कंसिस्टेंसी मुझसे एक्सपेक्ट करनी भी नहीं चाहिए। मेरा मन रहता है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। मैं वीडियोस बनाती भी पता है किस लिए होगी, मैं खुद देखूँगी इसको 5-6 साल बाद तो आई विल बी यू नो क्रिंजिंग एट माई सेल्फ कि आज मज़ा आता है। पर ये सब करने में बहुत मज़ा आता है कि तुम अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए रख रहे हो ये सब, इट्स फन। तो या see you guys. Thank you for watching.